ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی راہیل شیئر کر رہے ہیں۔ راہیل کہتے ہیں میں سانگلا ہل سے آگے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بھیانک رات کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 8 سال پرانی بات ہے۔ میں نے حیدرآباد جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ٹرین کا سفر کرتا ہوں اور رات کو ہی میں ٹرین پر سوار ہوں گا اور صبح میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے میرے ایک دوست نے انفارمیشن دی تھی کہ ہم لوگوں کے گاؤں سے آگے ایک اور گاؤں ہے، وہاں پر ایک اسٹیشن ہے، وہاں سے رات کے وقت ٹرین چلتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ اس گاؤں کے بارے میں میں نے پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ میرا بالکل پہلا ہی ایکسپیرینس تھا کہ میں اس طرح سے ٹرین پر سفر کرنے جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے تقریباً 11:30 پونے 12 بجے نکلا۔ 1 بجے وہاں پر ٹرین نے پہنچ جانا تھا۔ میں وہاں پر جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، ہر طرف دھند تھی، سرد رات تھی۔ میں چپ چاپ چادر لپیٹے اپنے گاؤں سے نکلتا باہر مین روڈ پر آ گیا۔ وہاں سے اب میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے کوئی سواری مل جائے۔ میرے پاس گھر میں کوئی بھی اور ٹرانسپورٹ نہیں تھی، نہ ہی کوئی موٹر بائک، نہ ہی کوئی گاڑی۔ میرے 2 بھائی تھے جو دونوں مجھ سے چھوٹے تھے، تو مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ والد صاحب بوڑھے اور بیمار تھے، وہ مجھے چھوڑنے جا نہیں سکتے تھے اور کوئی بھی دوست اس ٹائم مجھے چھوڑنے گاؤں سے باہر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے گاؤں سے آگے کچھ علاقہ بہت زیادہ ویران تھا، تو ہر کوئی ڈرتا تھا کہ رات سردی کے موسم میں کون بھلا اتنی دور جائے۔ میں سڑک پر کچھ دیر تو چلتا رہا، چلتے چلتے مجھے بس یہ انتظار تھا کہ مجھے کوئی گاڑی مل جائے، کوئی جگہ مل جائے۔ تبھی پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والا آتا ہوا آدمی مجھے نظر آیا۔ میں نے اس کو اشارہ کیا رکنے کا۔ اسے لگا کہ گاؤں کا کوئی بندہ ہوگا۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک پولیس والا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے اگلے گاؤں کے اسٹیشن جانا ہے، میری مدد کرو، مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کس گاؤں سے ہو اور اتنی رات کو اسٹیشن کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ یہ میں فلاں گاؤں کا ہوں اور مجھے حیدرآباد پہنچنا ہے، تو مجھے پتا لگا کہ وہاں پر اسٹیشن ہے، تو میں اس لیے ادھر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر جاتا تو مجھے فیصلہ آباد جانا پڑنا تھا، تو اس لیے اس گاؤں میں مجھے ایک اسٹیشن کا پتا چلا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس اسٹیشن پر کوئی ٹرین رکتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیشن تو بہت پرانا اسٹیشن ہے، لیکن شاید وہاں پہ رکتی ہو، اگر تمہارے دوست نے تمہیں بتایا تو ہو سکتا ہے، بہرحال دھیان سے جانا۔ اس آدمی نے میری اتنی مدد کی کہ اس نے مجھے اپنے موٹر سائیکل پر لفٹ دے دی اور مجھے اس گاؤں کی حدود پر چھوڑ دیا۔ اب گاؤں کی حدود پر تو میں پہنچ گیا۔ جو اسٹیشن تھا وہ اس گاؤں کے اندرونی حصے میں تھا، یعنی اندرونی حصے میں اس طرح سے تھا کہ آبادی کا کچھ حصہ کراس کر کے پھر اس سے آگے وہ اسٹیشن بنتا تھا۔ مین روڈ سے اس کا کوئی بھی کنیکشن نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اسٹیشن بہت پرانا تھا، اور پھر جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی گئیں تو سڑکیں مین روڈ سے بھی نکلتی گئیں۔ گاؤں بالکل ویران اور سنسان تھا، دھند اور ٹھنڈی ہواؤں میں ڈوبا ہوا۔ دور مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، ایک ایسا پرندہ جو رات کے وقت فضا میں اڑتا ہے، اس کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ میں چپ چاپ چلتا گیا، پتا کوئی نہیں تھا کہ جانا کس سائڈ پر ہے۔ تھوڑا سا اس پولیس والے نے مجھے گائیڈ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ گاؤں کی آبادی کی پہلی 2 سڑکیں چھوڑ کر جہاں پر گھر ہے تم نے وہاں سے رائٹ سائڈ مڑ جانا ہے اور وہ سڑک سیدھی اسٹیشن کی طرف ہی جاتی ہے۔ اس وقت تو گاؤں خاصا بڑا لگ رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گاؤں بالکل سنسان تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی انسان تو آباد ہے ہی نہیں۔ جانوروں کے گلوں میں باندھی ہوئی گھنٹیوں کی صدائیں آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔
तभी मैंने स्टेशन की जानिब चलना शुरू कर दिया। जैसे मैं एक कच्चे रास्ते से होता हुआ स्टेशन की तरफ जा रहा था, उसके दोनों एतराफ में दरख्त थे, बिल्कुल कच्ची सड़क थी। वहां पर जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे उन दरख्तों में, उन वीरानों में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें ऐसी थी कि जिस तरह से छोटे बच्चे और औरतें आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि मैं आबादी की सड़कों को पीछे छोड़ आया था। मुझे लगा कि शायद मैं पहली बार इस तरफ आया हूं, हो सकता है इन दरख्तों की दूसरी जानिब भी घर हों जहां से आवाजें आ रही हैं। मैं चलता जा रहा था और वो आवाजें भी जैसे मेरे साथ साथ चल रही थी, यहां तक कि मुझे रेलवे स्टेशन के आसार दिखाई देने लग गए। वहां पर लाइट जल रही थी, दूर से मध्यम सी रोशनी मुझे नजर आ रही थी, यहां तक कि मैं बहुत तेज कदमों के साथ चलता गया। अब वो आवाजें, सरगोशियां मुझसे पीछे रह गईं और सिर्फ मैं था और वो अंधेरी रात थी। मैं चुपचाप स्टेशन की जानिब रवां दवा था। जैसे ही मैं उस पुराने स्टेशन के करीब पहुंचा, स्टेशन तो बिल्कुल वीरान था। वहां पर तो मुझे उस पुलिस वाले की बात मेरे जहन में आ गई, वो बात याद आ गई कि मुझे नहीं लगता कि वहां पर अब ट्रेन आती होगी, लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम जाकर एक दफा देख लो। काश मैं उसकी बात मान लेता और वहीं से वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता, लेकिन नहीं, होनी को भला कौन टाल सकता है। मैं स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन तो बिल्कुल खस्ता हाल था, मानो जैसे यहां पर तो सालों से कोई नहीं आया। एक टूटा हुआ कमरा था जिसके ऊपर एक तख्ती लटक रही थी और वो तख्ती भी टेढ़ी हो चुकी थी। लकड़ी की एक तख्ती जिसके ऊपर मकड़ी ने जाले बुन रखे थे, जो कभी किसी स्टेशन मास्टर का कमरा हुआ करती थी। उसके साथ एक और बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसमें सीमेंट के और लकड़ी के बेंच चारों तरफ लगे हुए थे, जहां पर किसी दौर में मुसाफिर बैठकर रेल आने का इंतजार करते थे कि किस टाइम ट्रेन आएगी और वो लोग जाएंगे। मैं तो बड़ा पछताने लग गया कि अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। मैं तो इतनी सर्दी में यहां पर जैसे पहुंचा हूं, मैं ही जानता हूं। भला मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये दुश्मनी कैसे ली? क्यों उसने मेरे साथ ये झूठ बोला? वापस जाने की तो मुझ में हिम्मत थी नहीं, इतनी सख्त शदीद सर्दी थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करता हूं और फिर यहां से चला जाऊंगा। मैं वहां पर ठंड से बचने के लिए, वो जो हॉल कमरा था, मुझे एक बेंच नजर आया। वहां पर उस स्टेशन की कुछ रोशनी जा रही थी। मैं अंदर होकर वहां पर बैठ गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं जो मुझे देख रही हैं और शायद मेरी बेवकूफी पर हंस भी रही होंगी कि ये कौन है जो एक वीरान सुनसान इतने पुराने स्टेशन पर आ गया, वो भी आधी रात को। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर कोई बोल रहा है, बड़ी ऊंची आवाज में मुझे किसी मर्द के बोलने की आवाज आई। मैं फौरन से बाहर निकला कि शायद कोई और मुसाफिर भी मेरी तरह भूला भटका इस टाइम इस वीरान और सुनसान स्टेशन पर आ गया है। जब मैं बाहर निकला तो क्या देखता हूं कि एक बूढ़ा शख्स है। बहुत बूढ़ा था वो, बिल्कुल जैसे उसकी कमर भी झुकी हुई थी, हाथ में जिस तरह से कोई लालटेन पकड़े हुए बिल्कुल एक कोने की तरफ से चलता हुआ आ रहा था और बुलंद आवाज में कुछ बोलता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो कुछ पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये आदमी इतनी रात को बिना जर्सी के, बिना गर्म चादर के, वो भी इस उम्र में, भला कैसे सरवाइव कर सकता है? मैं उस आदमी को बगौर देखने लगा। मैं थोड़ा सा स्टेशन के बरामदे से बाहर निकला और उसको आवाज देकर ये पूछने लगा कि बुजुर्गो, आप कौन हो और इतनी रात को मेरी तरह इस वीरान स्टेशन पर कहां आ गए हो? इससे पहले मैं उससे कोई बात करता, वो चुपचाप उसी पटरी के ऊपर चलने लग गया और चलता चलता मेरे सामने उस पटरी को क्रॉस करके जो दूसरी तरफ हिस्सा था स्टेशन का, एक और वीरान हिस्सा, उस जानिब जाकर खड़ा हो गया। अब वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल मेरे सामने था। मैं थोड़ा सा उसके करीब जाने लगा तो जैसे वो रोशनी उसने अपने चेहरे के पास की, जैसे उसने वो रोशनी अपने चेहरे के करीब की तो मैं चेहरा देखकर डर गया। मुझे तो वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, इतना खौफनाक उसका चेहरा था। नाक वाली जगह पर एक सुराख था, आंखें इंसानों जैसी थी, होंठ भी इंसानों जैसे ही थे, लेकिन कान जो थे वो बहुत बड़े थे, जिस तरह से किसी गधे के होते हैं। मैं देखकर बहुत डर गया, मेरी एकदम से चीख निकली कि ये क्या चीज है। अब मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला बेसाख्ता।
मैं 2 कदम पीछे हटा और मैं गिर गया। जैसे मैं गिरा, दोबारा वहां नजर पड़ी तो वो आदमी नहीं था। मेरा तो ऊपर वाला सांस ऊपर और नीचे वाला नीचे रह गया, और मेरे पीछे तो कुछ था भी नहीं। वल्लाह आलम मैं किस चीज से टकरा कर गिरा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या माजरा है, भला ये कौन था। शायद ये जगह आज सेफ ज़दा है, क्योंकि जो हुलिया मैंने देखा है वो किसी इंसान का हुलिया तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यहां से निकलना चाहिए। मैं जल्दी से उसी स्टेशन के उस वीरान कमरे की तरफ गया जहां पर मेरा कपड़ों से भरा एक बैग था। मैंने वो बैग उठाया और जैसे वहां से बाहर निकलने लगा तो मेरे कानों में एक आवाज टकराई। आवाज वो थी कि जब स्टेशन पर गाड़ी आती है तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो सिग्नल मैन को ये कहता है कि तुमने वहां पर जाकर, वो जैसे लोहे की एक स्लेट सी होती है और उसके ऊपर वो उसको बजाते हैं तो एक मखसूस आवाज आती है कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच गई है, या ट्रेन ने जब निकलना होता है तो उस वक्त भी वो साइन, वो सिग्नल दिए जाते हैं। अब मैंने वो आवाज बकायदा सुनी, बचाने वाला तो सामने कोई था नहीं। मैं चारों तरफ देखने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उन मखलूकात ने मेरे दिमाग को बिल्कुल माउफ कर दिया है, यानी मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था। उस बूढ़े शख्स को देखने के बाद तो मुझे वहां पर रुकना भी नहीं चाहिए था। तभी मैं क्या देखता हूं कि एकदम से जिस तरह से कोई औरत है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन है, पता नहीं वो बर्तन किस चीज का है, उसके ऊपर वो जिस तरह से कुछ बजाती हुई दूर दराने से चलती हुई आ रही है, अजीबो गरीब लिबास पहने, अजीबो गरीब हुलिये में। बस उसको देखने की देर थी, मैंने वहां से दौड़ लगा दी। मैं इतना तेज भागा कि मैं उस सड़क पर पहुंच गया जो कच्ची सड़क थी जिसके दोनों अतराफ में दरख्त थे, जहां से पहले मुझे सरगोशियां सुनाई दे रही थी। अब वहां से मुझे सरगोशियां नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि रात के उस वीराने में मुझे वहां से तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। जिस तरह से बहुत से औरतें बैठकर किसी शादी वाले घर में तालियां बजाती हैं। कोई ढोलक की आवाज नहीं थी, सिर्फ तालियों की आवाज थी। उन तालियों को सुनकर, उनकी गूंज को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मानो या ना मानो ये पूरा इलाका ही जिन्नात का है। मैं वहां से भागता हुआ बहुत तेज भाग रहा था। मुझे यह था कि जिस तरह से हो सकता है आज अपने आप को बचा लूं, वरना ये जिन्नात तो शायद मुझे जान से ही मार देंगे। इस हद तक खौफनाक जगह, और मैं भी कितना बेवकूफ था, बिना सोचे समझे इस स्टेशन की तरफ आ गया। जो ही मैं उस गांव से उस आबादी की सड़कों पर पहुंचा, मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। बकायदा मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी, जैसे उसी पुराने स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है। ट्रेन का जो सायरन होता है, जो हॉर्न होता है, मुझे वो भी सुनाई दिया। भला उस स्टेशन पर ट्रेन, लेकिन ऐसे था जैसे ट्रेन वहां पर रुकी नहीं। ट्रेन बड़ी तेजी से उस स्टेशन से आगे निकल गई और मैं पछताता ही रह गया कि अगर 2 कदम मैं वहां से ना निकलता तो शायद मैं ट्रेन में सवार हो ही जाता। शायद मुझे देखकर ट्रेन को रोक लिया जाता। अब मेरे पास दोबारा वापस पलटने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसी वीरान सड़क पर वापस चलना शुरू कर दिया। उस गांव से तो मैं बाहर निकल आया। आधी रात हो चुकी थी और मैं वीरानों में भटक रहा था, अनजान रास्तों पर, एक नए गांव में, एक नए रास्ते पर। इस हद तक थक गया था कि जो मेरे पांव थे जिस तरह से सुन्न हो गए हैं। अब मेरे से चला नहीं जा रहा था, वैसे ठंड इतनी शदीद थी। वहां पर मुझे एक कमरा नुमा कोई जगह नजर आई, उसका भी दरवाजा नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठने लगा। सड़क के एक कोने पर बना हुआ था, पता नहीं किस मकसद के लिए बनाया गया था। पहले तो मैंने आवाज दी, कोई भी नहीं था। झांक कर देखना चाहा, कोई था ही नहीं। बिल्कुल एक वीरान सुनसान छोटा सा कमरा था। उसके ऊपर एक बल्ब भी लगा हुआ था। पता नहीं किसका घर था या किसका कमरा था, शायद किसी चौकीदार के लिए बनाया गया हो, लेकिन गांव में भला कौन चौकीदारों के कमरे बनाता है। मैं वहां पर थोड़ा सा बैठ गया। मेरी टांगों को कुछ सुकून आया, लेकिन वहां पर बैठना भी किसी अजाब से खाली नहीं निकला। मेरे कंधे शल हो गए। मेरे कंधे इतने बोझल थे कि जिस तरह से मेरे कंधों के ऊपर बहुत ज्यादा किसी ने वजन रख दिया हो। मेरे कंधे दबते ही जा रहे थे और आगे की तरफ झुकने लग गए। मुझे बकायदा लगा कि मेरे कंधों के ऊपर किसी ने हाथ रख दिए हैं, या बकायदा कोई खुद सवार हो गया है। मैं एकदम से फौरन उठा और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। कदम तो जैसे जम ही गए।
बस मुझे लगा कि अब नहीं, वहां से तो बच निकला हूं, यहां से नहीं बचता। पता नहीं कौन सी कुव्वत थी, अल्लाह की रहमत थी, कौन सी गैबी ताकत थी। मुझे बकायदा लगा कि जिस तरह से मेरा हाथ किसी ने पकड़कर खींचकर मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दिया हो, और बकायदा मेरे जिस्म को एक झटका भी लगा और कंधों के ऊपर जो वजन था वो हट गया। मैंने फिर वहां से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा, थोड़ी देर के बाद एक लोकल बस नजर आई। रात के उस पहर में एक लोकल बस वहां से हॉर्न बजाती हुई भागती आ रही थी, तो मैंने रुकने का इशारा किया। मेरी हालत देखकर वो लोग परेशान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मदद करें, मैं इस गांव से बड़ी मुश्किल से निकला हूं, मैं पुराने स्टेशन पर चला गया था, इस गांव से अगला गांव मेरा है, मुझे वहां पर उतार देना। उस कंडक्टर को मेरे ऊपर तरस आ गया। इतनी सर्दी में मैं पसीने से भीगा हुआ था। वो लोगों ने मुझे बस में बिठा लिया और मेरे गांव के बाहर उतार दिया। अब गांव के अंदर जाना भी मेरे लिए बहुत मुहाल था। हालत ही ऐसी थी, पूरी रात से सिर्फ भाग ही रहा था, पूरी रात से एक मुसीबत में मुब्तला था। पता नहीं कैसे करके मैं घर पहुंचा। जब घर वापस गया तो फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने के रास्ते में ही मुझे फजर हो गई। घर वालों ने देखा ये तो हैदराबाद जाने के लिए निकला था, तो ये कैसे आकर सो गया। मैं सोया हुआ था, मुझे मेरी अम्मी ने जगाया। वो डर गई मुझे देख के। जैसे ही अम्मी ने मुझे जगाया, मैं खौफजदा तो पहले ही था, मैंने चीखना शुरू कर दिया। अम्मी ने मेरे मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम तो हैदराबाद जाने के लिए निकले थे। तो मैंने उन्हें रात की सारी रुदात बता दी। अम्मी बहुत डर गई कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ और मैं क्या कुछ बर्दाश्त करके आया। इसके बाद मुझे इतनी नींद आई कि मैं अगली शाम जाकर उठा। मैं बहुत ज्यादा सोया और मुझे घर वालों ने भी नहीं जगाया। जैसे ही मैं जागा, मेरी कुछ हालत कदरे बेहतर थी। नहा धोकर मैंने वजू किया, नाश्ता वगैरह किया, सूरत यासीन पढ़ी और सीधा अपने उस दोस्त के पास चला गया। मैंने उसे जाकर ये कहा कि मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, भला तुमने मेरे साथ क्या किया। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे सामने मैंने नाम लिया था कि मैंने हैदराबाद जाना है और उसके लिए मुझे फैसलाबाद स्टेशन पर जाना होगा, तो तुमने मुझे एक ऐसे गांव का रास्ता बता दिया जहां पर एक आसेब ज़दा और पुराना रेलवे स्टेशन था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो जिन्नात मुझे जान से मार देते तो मेरा तो किसी को पता भी ना चलता। वो हक्का बक्का होकर मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और ये कहने लगा, कौन सा रेलवे स्टेशन और कौन सा गांव। ना तो मैं किसी गांव को जानता हूं, ना ही किसी रेलवे स्टेशन को। मैंने तुम्हें ये बात कब कही है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे ऊपर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। भला ये कैसे मुमकिन है। तुमने मुझे बताया था आज से 2 दिन पहले, याद करो, जब दोपहर के टाइम हम लोग डेरे से वापस आ रहे थे और तुम बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए थे और मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी करो, मुझे जाकर तैयारी करनी है। उसने कहा कि 1 मिनट, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। परसों दोपहर में डेरे पर गया ही नहीं, मैं तो अपने मामू के गांव गया हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तुम मेरे साथ डेरे से वापस आए हो, आओ मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। मैंने उसे डेरे की वो सड़क दिखाई, मैंने वो बरगद का पेड़ भी दिखाया जहां पर वो बैठा था। उसने कहा मेरे साथ मस्जिद में चलो, मैं कुरान पाक पर हलफ देता हूँ। मैं वो नहीं था। यहां तक कि उसने मुझे अपने घर जाकर तस्दीक भी करवाई। फिर मुझे स्टेशन का रास्ता बताने वाला कौन था, ये आज भी मेरे लिए एक पहेली है। क्या वो कोई मखलूक थी, गैर मरी मखलूक, कोई भूत प्रेत या कोई जिन। और पता नहीं मुझे वहां पर बुलाने का मकसद क्या था। शायद वो मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। बेशक मैं बच तो गया, लेकिन उसके बाद कभी भी हिसार किए बिना, आयतुल कुर्सी पढ़े बिना और वजू किए बिना ना तो मैं अपने डेरे पर जाता हूँ और ना ही शहर से और गांव से बाहर। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया राहीला आपका। अपनी हिफाजत इंसान को खुद करनी चाहिए। बावजू रहें, पाक साफ रहें, अपने ऊपर चारों कुल आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक का हिसार करें, तो इंशाल्लाह कभी कोई मखलूक आपके करीब नहीं आ सकेगी। ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
میرے باقی کے جو چینلز ہیں ان پر بھی میں جلدی سٹوریز پوسٹ کروں گی، انشاءاللہ کل ہی کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ کمیونٹی ٹیب میں میں نے 2 نئے چینل، ایک میرا اور ایک میرے بھائی کا چینل ہے، ہارر سٹوریز ود ہارون، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، اور میری وجہ سے جب میرے بہن بھائیوں کو بھی آپ لوگ جا کر سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، دگنی خوشی ہوتی ہے۔ اسکیری ٹو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ میرے ایک لسنر نے مجھے کل کمنٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے کوئی سٹوری شیئر کی ہے کمنٹ باکس میں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے سارے کمنٹ چیک کیے ہیں، مجھے کسی کمنٹ میں بھی آپ کی سٹوری نہیں ملی، تو پلیز آپ مجھے آج والے جو یہ والی سٹوری ہے اس کے کمنٹ باکس میں اپنی سٹوری دوبارہ پوسٹ کریں تاکہ وہ مجھے مل سکے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔